I was even on contraceptive pills. 2 mm का cyst था on my right ovary. So if you guys want to get rid of PCOS, just make sure that you. Hey guys, welcome back to my YouTube channel. If you are new here, this is Drishti Vora. So guys, आज की video is not like a regular video that I usually do. It's something related to my life and PCOS. That is basically polycystic ovarian syndrome, which is happening a lot nowadays and बहुत लड़कियाँ face कर रही है इस चीज़ को. Honestly, like I don't want anyone to go through that because it's really bad. So while I tell you my whole story and how you can overcome this, I'm going to be doing a makeup look side by side so you guys can see that as well, and I'll have all the products linked down below in my description box. So now without wasting any time, let's get into the video. So before we get started, let me give you a backstory of what exactly happened with me and how this whole thing started. So I got PCOS when I was just 17 years old and I'm currently 25 years old, and उस time मैं ना school में थी. Like my eating habits were like really bad. I used to eat all sorts of junk. Like मेरी mom अगर घर पे गोभी बनाती थी तो I used to skip that and order KFC instead. Obviously that was not doing it for me. तो एक दिन क्या हुआ ना, I was at home that day. Luckily it was a Saturday and मेरी स्कूल की छुट्टी थी उस टाइम, and मेरे को इतनी गंदी दर्द हुई थी like on my lower abdomen that I just couldn't get up from my bed, and it was that bad. Like I could not tolerate that pain. Okay, and थोड़े थोड़े टाइम में ना वो increase होता जा रहा था pain. I thought it must be gas because क्या होता है ना, मेरे को बहुत बारी ऐसा होता है like I feel gassy and यहाँ वहाँ दर्द होने लग जाती है. So I literally thought it's that, and I did not know that I had PCOS right now. So I used to take a painkiller and मैं उसको कम करने की कोशिश करती थी, and painkiller से सही भी हो जाता था वो दर्द, and it literally used to vanish. But obviously like I cannot live on painkillers all my life, and something was definitely up. So I ignored it once and I was like ठीक है, maybe you know I'm gassy or something and इसलिए हो रहा होगा. I ignored it once, I ignored it twice, I ignored it the third time also. Because क्या होता है ना, I think that's human nature. हमारे साथ जब तक कुछ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ना हो जाए तब तक हम एक्शन नहीं लेते हैं, and I think that's with everybody. तो मैंने वो साइंस 3 बार इग्नोर किए, but the 4th time I knew something is up. क्योंकि क्या होता था ना, हर मंथ लाइक मिडल ऑफ द मंथ वो चीज़ शुरू हो जाती थी बिकॉज ऑब्वियसली ओव्यूलेशन उसी टाइम पे होती है, एंड आई यूज टू लाइक थिंक व्हाई इज दिस हैपनिंग ऑलवेज इन द मिडल ऑफ द मंथ. सो 4th टाइम जब हुआ आई न्यू समथिंग वाज डेफिनेटली अप. एंड ऐसा नहीं था कि मेरे पीरियड्स इरेगुलर थे, बिल्कुल भी मेरे पीरियड्स इरेगुलर नहीं थे, एग्जैक्ट डेट पे हो रहे थे. एंड सबके PCOD वाले सिम्टम्स जो होते हैं ना, इट कैन वेरी. इट्स नॉट लाइक सबको सेम टाइप के सिम्टम्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं, एंड मेरे भी कुछ ऐसे ही थे. आई डिड नॉट गेट एनी एक्ने. यू नो यूजुअली क्या होता है व्हेन पीपल गेट PCOS, उनको एक्ने ब्रेकआउट शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो वन साइन हाउ यू गेट टू नो यू हैव PCOS. बट मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था. बट येस, मेरे को हेयर फॉल हो रहा था, विच आई वॉज अगेन इग्नोरिंग, थिंकिंग दैट मे बी आई एम जस्ट यूजिंग लाइक अ स्ट्रेटनर, क्योंकि स्कूल के टाइम पे आई जस्ट यूज टू यूज अ स्ट्रेटनर, एंड और कुछ हीट में नहीं अप्लाई करती थी अपने बालों में. सो 4th टाइम जब मेरे को फिर से वो दर्द हुई, आई हैड टू मीट माई गायनेक, एंड आई टोल्ड हर मंथ लाइक मिडल ऑफ द मंथ मेरे को यहाँ पे एब्डोमेन में ना दर्द होती है. सो उन्होंने मेरे को कुछ चेकअप किया था पहले, लाइक शी चेक्ड माई होल एब्डोमेन, हाथ पे ऐसे दबा के उन्होंने कुछ चेक किया, एंड शी knew what was wrong, but she didn't tell me that time. So she told me you can go for an ultrasound, and पीरियड के आई थिंक पीरियड के 2nd डे या कुछ बोला था उन्होंने, या पीरियड ख़त्म होने के 2nd डे, आई थिंक या पीरियड ख़त्म होने के 2nd डे शी सेड टेक एन अल्ट्रासाउंड. आई डिड दैट, एंड गेस व्हाट, मेरे को पता चला मेरे को PCOS है, एंड एक 2 mm का cyst था on my right ovary, and I was like so scared. I started crying and there was like a huge mess at home because I was constantly crying that oh my god, now you know I don't know what am I going to do, because the doctor also said usually क्या होता है जब ऐसे cyst बड़े हो जाते हैं ना, तो वो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से ही रिमूव होते हैं, एंड उनको मेडिकेशन से रिमूव नहीं किया जा सकता है. एंड ऑब्वियसली मी बीइंग अ पाइसेस एंड एन ओवरथिंकर, मेरे को लगा अब मेरे को सर्जरी करानी पड़ेगी, मेरी तो लाइफ बर्बाद हो चुकी है, आई एम जस्ट 17 years old, एंड सारी जो भी यू नो टीनेजर थिंग्स, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी. सो आई वेंट टू माई डॉक्टर अगेन एंड आई शोड हर माई रिपोर्ट्स, माई अल्ट्रासाउंड, एंड शी सेड आपको सिस्ट हो रहा है आपकी ओवरी पे. एंड आई वाज लाइक ओके, बट अब आगे क्या करेंगे हम.
So then she told me that if you don't change your lifestyle and if you don't lose weight, we will have to do a surgery on you. So she told me that she's gonna put me on some medication, and I was like, okay. So I was on some medication that time. It was, I still remember the name, but I'm not gonna mention it because I don't want any of you to go and start eating that without consulting your doctors. And सबका केस अलग होता है. उसके बाद क्या हुआ था ना, डॉक्टर ने मेरे को बोला आपको ना अपने लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़ेंगे वरना सर्जरी तो पक्की है आपकी. And I was like, okay, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस लाने पड़ेंगे. So she asked me आप क्या लेते हो पूरे दिन भर. So मेरी मॉम ने obviously मेरे को रैट आउट कर दिया डॉक्टर के आगे. And she said जब भी मैं कोई सब्जी बनाती हूँ, ये KFC मंगाती है, मैकडोनल्ड्स मंगाती है, डोमिनोज मंगाती है, ऐसी ऐसी चीज़ें मंगा के ये खाती है. So the doctor was like, of course. Like this is the only reason why it's happening. So क्या होता है ना, जो हम जंक फूड कंज्यूम करते हैं उसकी वजह से ना जो भी उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल और फैट होता है वो सारा कभी कभी ओवरी पे जाके चिपक जाता है. एंड माइंड यू, like 99% ऑफ द गर्ल्स इन इंडिया हैव PCOS. और इंडिया भी क्या, बाहर भी आई थिंक बहुत सबको हो रहा है यार PCOS. लाइक थिन गर्ल्स ऑल्सो हैव इट. इट्स नॉट लाइक योर फैट दैट्स व्हाई यू हैव इट. थिन लड़कियों को भी होता है बिकॉज ऑब्वियसली आवर ईटिंग हैबिट्स आर नॉट राइट. सो अब मैं एक चीज़ के लिए तो रिलीव्ड थी कि अब ये होने नहीं वाला है ये दर्द कभी भी. बिकॉज गाइज आई कांट टेल यू हाउ बैड इट वॉज. मैं उठ भी नहीं पाती थी बेड से, पूरे पूरे दिन मैं पड़ी रहती थी बेड पे. एंड इट वॉज दैट बैड. एंड आई डोंट थिंक like any girl should go through that because it was the worst time of my life. So getting back to the point, फिर क्या हुआ, मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि आपको ये वाली वेजिटेबल्स खानी है, ये फ्रूट्स खाने हैं, आपको ये खाना है, वो खाना है. You need to work out also. You need to complete your 10,000 steps. चाहे आप कोई वेट लिफ्टिंग वगैरह ना करो या जिम ना जाओ, कुछ मत करो, but at least just walk 10,000 steps. And I was like, okay. That was the day when I started, bringing a change in my diet. And I literally used to just eat thrice a day. वरना मैं पूरे दिन चढ़ती रहती थी खाना. एंड मैं इतनी ज़्यादा पागल थी कि मेरे को लिटरली हेयर फॉल हो रहा था, इतना भयानक वाला. आई एम गोना अटैच अ पिक्चर और अ वीडियो वे. आई डोंट रिमेंबर मैंने क्या लिया था उस टाइम, बट एक तो है मेरे पास बिकॉज आई वाज द ओनली सिम्टम आई हैड दैट टाइम. एंड इतने सारे मेरे बाल टूटते थे और मैं ये सोचती थी मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द हीट. बट हीट मैं अभी भी लगाती हूँ और मेरे इतने बाल नहीं टूटते हैं. तो यस, आई वॉज बेसिकली अ फूल थिंकिंग दैट हीट से मेरे गुच्छे के गुच्छे, एंड माइंड यू इतना बड़ा गुच्छा वो एक कोम में निकलता था मेरी. एंड नॉट लाइक कि मैं पूरे दिन का वो दिखा रही हूँ मैं आपको, वो लिटरली मैंने एक बार ही कोम किया था, इतने सारे बाल गिरते थे. मैंने ठान ली थी उस टाइम से दैट आई एम गोना लूज वेट नो मैटर व्हाट. बचपन में आई वाज लिटरली सो स्किनी एंड आई वाज नॉट अ फैट किड एंड आई वाज वेरी लाइक स्पोर्टी सॉर्ट ऑफ अ किड जो हर वक्त स्पोर्ट्स खेलते रहता है. आई वाज दैट टाइप ऑफ अ किड. एंड देन सडनली आई डोंट नो मेरे को क्या हुआ था दैट आई बिकेम वेरी वेरी लेड बैक. आई नेवर पार्टिसिपेटेड इन एनी स्पोर्ट्स. आई वाज जस्ट लाइक अ काउच्ड पोटैटो. सो इस चीज़ के बाद ना मैं काफ़ी ज़्यादा लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आई. आई वाज इवन ऑन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. तो व्हेनेवर यू हैव PCOS द डॉक्टर ऑलवेज गिव्स यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. आई डोंट नो हाउ दे वर्क, उसकी क्या साइंस है पीछे, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट इट वर्क्स समहाउ. सो फिर मैंने अपने लाइफस्टाइल में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए थे. लाइक आई यूज्ड टू ईट ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेजिटेबल्स विच आई नेवर डिड. आई यूज्ड टू हेट ईटिंग वेजिटेबल्स. वो सब मैं खाना शुरू हो गई. घर का खाना बेसिकली मैं ज़्यादा खाती थी एंड बाहर का तो मैंने एकदम ही कट ऑफ कर दिया था. फिर लाइक 6 months आई डिड नॉट टच एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड. मैं कोई डोमिनोज, मैकडोनल्ड्स और व्हाटएवर जो भी है कुछ नहीं खाती थी. आई लेफ्ट शुगर ऑल्सो बिकॉज शुगर इज ऑल्सो वन मेन फैक्टर जिससे PCOS होता है. एंड इन केस ऑफ हैविंग दैट प्लीज स्टॉप इट राइट नाउ बिकॉज शुगर इज द मोस्ट हार्मफुल थिंग एवर. लाइक इट्स वर्स देन स्मोकिंग सिगरेट्स. सो शुगर इज समथिंग दैट आई डोंट हैव टिल डेट. मैं शुगर त्याग चुकी हूँ लिटरली. बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ अगर मैं बाहर खा लेती हूँ जिसमें शुगर होती है, दैट्स the only amount of sugar I have. That too I don't even like eat from outside इतना ज़्यादा. And usually मैं घर का ही खाना खाती हूँ. तो मेरे lifestyle में ना काफ़ी ज़्यादा changes आ गए थे. I started completing my 10,000 steps per day and I used to eat healthy, drink at least 3 liters of water. Like I'm not kidding. I literally used to drink that much water. Now maybe मैं थोड़ी चोरी कर लेती हूँ. But उस time पे I was drinking like 3 liters. I went mad. Okay, because I didn't want that pain to come back again or go through a surgery. So I was literally like so health conscious that time. I lost weight. So जब मेरा weight loss शुरू होने लग गया, I literally thought I've conquered the world. Because मेरे को बिलीव भी नहीं होता था कि मेरा weight loss हो रहा है. Because I was not the type of person जिसको लगता था कि हाँ I can also do those type of transformations. But I did lose weight. And weight loss के बाद after I think 6 months or something, the doctor told me to take an ultrasound.
and I took an ultrasound again and पॉजिटिवली सब सही था. वो सिस्ट जा चुका था एंड बिल्कुल भी उसका कोई भी नामो निशान भी नहीं था. सो दैट्स हाउ आई लर्नड माई लेसन एंड आई लर्नड इट द हार्डेस्ट वे, बट एट लीस्ट आई डिड. सो गाइज, इफ यू वांट टू like get rid of PCOS sitting at home and you don't want to go through that shit that I went through, then just focus on your diet. Like 80% आपकी डाइट ही होती है जो सब कुछ बर्बाद कर देती है अगर आप अच्छे से ना खाओ, and 20% वर्कआउट. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू गो फॉर अ वॉक लाइक फॉर एटलीस्ट एन आवर. अगर आप 10K स्टेप्स नहीं कर पा रहे हो तो एटलीस्ट 8,000 स्टेप्स कंप्लीट करने की कोशिश करो. ट्राई टू बी एज एक्टिव एज यू कैन एंड डाइट प्लीज़ मेंटेन करके रखो, बिकॉज आई थिंक अगर मैं वो ना करती, आई डोंट थिंक वो सिस्ट जाता एंड वो अभी तक वहीं होता एंड मे बी मेरी कोई सर्जरी भी हो रखी होती, भगवान ना करे, बट ऐसा भी हो सकता था एंड थिंग्स कुड हैव गॉटन वर्स फॉर मी, बट आई एम ग्रेटफुल दैट दे डिड नॉट. एंड सही टाइम पे मेरे को पता चल गया कि मेरे को हो क्या रहा है. सो इफ यू गाइज वांट टू गेट रिड ऑफ PCOS, जस्ट मेक श्योर दैट यू ईट अ गुड क्लीन डाइट. ऑफ कोर्स मैं ये नहीं बोलती हूँ कभी भी कि आप जंक फूड छोड़ दो. मतलब मैंने छोड़ा था उस टाइम पे बिकॉज आई वॉज वेरी स्कैर्ड कि अब क्या होगा मेरे साथ. यू कैन हैव इट वंस इन अ वाइल, ओके, जस्ट मेंटेन योर डाइट एंड वर्कआउट भी थोड़ा बहुत हिल लो. आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिड नॉट डू एनीथिंग एल्स एंड मेरा सब सही हो गया था 6 months में. सो मेरे को तो एक बात पता चली इस चीज़ से, एंड दैट इज़ दैट जब तक इंसान के साथ बहुत ज़्यादा बुरा नहीं हो जाता ना, तब तक वो इंसान बदलता नहीं है या अपनी वो पर्टिकुलर हैबिट चेंज नहीं करता. सो आई थिंक ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए टुवर्ड्स योर हेल्थ एट लीस्ट, बिकॉज आई थिंक योर हेल्थ इज़ योर wealth. And guys, I think it's very important to get rid of PCOS because it can literally cause infertility, and if you want to have kids in future, then I think you should maintain a good diet and also work on yourself. So guys, this is the makeup look that I did, and I hope you guys liked it and I hope you guys learned something from this video. Now if you found this video helpful, then do give it a big thumbs up and go and subscribe to my channel right now. Hit that bell icon and I'll see you in my next video. Bye guys.